Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to discuss about joins in Tableau. Which topic? Joins in Tableau. Joins in Tableau. So let's suppose that we have these two tables in which I have column of flight ID and then pax is number of passengers. So LF101 just a second, LF 863 250. उसके बाद we have another table flight in which a column like flight ID and then type and like columns. The column are like LF 186 and N and LF 101 and then LF 888 W. Okay, so I am discussing about join. So I will I have created complete video on joins in my SQL playlist, and the concept of join is same across Python, SQL, Tableau and any concept. So for example, like in these two tables we want to find out that how many number of passengers have were in the type and flight, or they were like how many total number of passengers were present in the W type flight. Okay, so in this such type of scenario, we want that either that type column should be in this table or either the pax column should be in that table. So in such scenarios we use joins, and I have explained more about join in the SQL video, in the SQL series on my channel. You can maybe watch them, and then you will understand the concept of join perfectly. I'll just explain you by showing you the examples in Tableau here. Another thing which I want to show is the order of filters. I want to tell you, since we have studied table calculation as well, right? So let me just tell you about the order of filters as well. Okay, order of filters होता क्या Tableau में? Okay, so order of filters ये होता है मेरा पहले होता है extract filter, and after that there come data source filter, and then dimension filter, and then measure filter, and then last is table calculation. Extract data to dimension measure. This is the like order of filter. This I have already tell you. I am just telling you that table calculation filter comes at class. Table class is table calculation filter. Okay. Okay, so let me just open Tableau. Okay, we go to the Excel file. And then here comes the Tableau data set. Will go to all the Tableau. Okay, this is the Worldwide CO2 data. ठीक है,
let me just load this file and then I'll see. So I will show you that how I will join these two data sets, CO2 K2 pivoted and CO2 per capita पिवोटेड, ठीक है. मैं शो करके दिखाऊंगी आपको. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसको ड्रैग करूँगी CO2 K2 पिवोटेड, ऐसे करते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या करूँगी, क्लिक ऑन, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस CO2 K2 पिवोटेड एंड आई विल जस्ट सेलेक्ट ओपन इट. I'll just open it and then after that मैं क्या करूँगी, I will drag the other table which we want to join. So मैंने अभी आपको बताया था मैं CO2 K2 पिवोटेड को CO2 पर कैपिटा पिवोटेड से ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मैं इसको उठा के यहाँ लेके जाऊँगी, ठीक है. अब ये देख रहे हैं आप, ये अपने आप ज्वाइन बन गया है. ज्वाइन का ही वेन डायग्राम है ना, ये ज्वाइन को ही शो करता है, तो इनर ज्वाइन है अभी फ़िलहाल ये, ठीक है. और ये बाय डिफ़ॉल्ट ईयर कॉलम पे ज्वाइन हुआ है, ठीक है, ठीक है. बट हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक हम इसमें और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं. कंट्री, लाइक यहाँ से कंट्री कोड ले लिया और यहाँ से भी हमने कंट्री कोड ले लिया. हम ऐसे भी कर सकते हैं बट मैं ऐसा नहीं कर रही अभी, ठीक है. ये जस्ट मुझे आपको दिखाना था. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो भी कॉलम टैबुलर ने लिया है कि हमें वही ज्वाइन में लेना है बाय डिफ़ॉल्ट. वी कैन चेंज दैट कॉलम एज वेल, ठीक है. ये हम कर सकते हैं, ओके. ये मुझे आपको थोड़ा शो करना था और मुझे थोड़ा आपको बताना था इस बारे में. एक सेकेंड, जस्ट लेट मी जस्ट गो टू माय ड्राइंग. कैसे करते हैं टैबलो में प्रैक्टिकली, ये अभी आपने देख लिया. मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ. अब ये मेरी दो टेबल्स थी, इसमें CO2 कौन कौन सी दो टेबल्स थी, CO2 K2 पिवोटेड एंड CO2 पर कैपिटा पिवोटेड, ठीक है. CO2 K2 पिवोटेड एंड CO2 पर कैपिटा पिवोटेड. तो CO2 K2 पिवोटेड में ना मेरे ऐसे कॉलम्स थे, मैं आपको दिखा दी. CO2 K2 पिवोटेड, इसमें मेरे ऐसे कॉलम्स हैं, लाइक कोड में मेरा कंट्री कोड है एंड देन ईयर एंड देन वैल्यू, ठीक है. ईयर का कॉलम है एंड देन वैल्यू का कॉलम है, ठीक है. तो लाइक कोड में मेरा ऐसे USA है, ईयर में क्या है 2010 लिखा है, ठीक है. एंड देन यहाँ वैल्यू लिखी है 1000 और लेट्स एग्जाम्पल इंडिया लिखा है एंड देन यहाँ पर 2010 लिखा है एंड देन वैल्यू में 500 लिखा है. एंड देन नेक्स्ट इज USA 2011 1500, ठीक है. ऐसे CO2 पर कैपिटा KT पिवोटेड हमने इस टेबल के साथ ज्वाइन किया, पर कैपिटा KT पिवोटेड. ओके, इसमें मेरे कॉलम्स इस तरीके से कोड, ठीक है, ईयर एंड देन वैल्यू पर कैपिटा, वैल्यू पर कैपिटा. इसमें वी हैव वैल्यूज लाइक USA, इंडिया एंड देन इसमें 2010 एंड इन दिस हैव वैल्यूज लाइक 150, ठीक है. सो अगर इसमें जैसे इसमें टैबलो ने बाय डिफ़ॉल्ट ईयर कॉलम पे लिया था, बट ईयर कॉलम में आप देख रहे हो यूनिक वैल्यूज़ नहीं है. यूजुअली हम ज्वाइन उन्हीं कॉलम पे करते हैं कि इसमें यूनिक वैल्यू, अदरवाइज ना गड़बड़ हो जाती है. दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू टेक कोड कॉलम इन दिस ज्वाइन एज वेल, कोड कॉलम इन दिस ज्वाइन एज वेल, ओके. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. सो इसलिए मैं यहाँ पे कंट्री कोड भी लूँगी और यहाँ पर भी कंट्री कोड लूँगी, ठीक. तो अब ये हो गया इस तरीके से जाना. अब आप देखोगे तो दोनों को हो गया. यहाँ से मैं इसे चेंज भी कर सकती हूँ, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन. अब देख रहे हो जैसे मैं चेंज करूँ वैसे ही डेटा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मतलब ये ऐसे ही चेंज हो. इस तरीके से आप यू कैन प्ले अलॉन्ग विद दिस थिंग्स. सो ये मेरा हो गया ज्वाइन का कंसेप्ट. अब आप अगर शीट्स पे जाएंगे तो आपको ये टेबल्स अलग से दिखेंगी, ठीक है, इनके कॉलम्स अलग से दिखेंगे.
सबके ये CO2 K2 पे वॉटर के हैं या इसके हैं, ठीक है. So that is all for today, guys. Now we'll meet in another video, another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible. And please do subscribe to my channel. Thanks.